Hello student, myself Professor Anjali Patel from Rockville BBA College, Vapi. Our subject entrepreneurship development with respect to your semester third in your SYBBA. Today we will cover the last topic, that is valuation of a new company in your unit number 1. So let us understand what is mean by valuation of a new company. वैल्यूशन ऑफ न्यू कंपनी मतलब जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करो एट दैट टाइम you are having a startup valuation, and whenever a business exit करो at that time also there is a exit startup value. तो कभी भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है कोई भी स्टार्टअप बिजनेस में, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वही थिंकिंग होगा, वो वही गैस करेगा कि उसके एग्जिट साइज का क्या वैल्यू होगा और उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में क्या एग्जिट साइज वैल्यू होगा, और उसी के हिसाब से अपनी वैल्यूएशन ऑफ अ न्यू कंपनी डिसाइड होती है. तो वेन एवर योर अर्लियर स्टेज इन्वेस्टर इज ट्राइंग टू डिसाइड if they should make an investment into startup, he will try to guess what the likely exit sides will be for the startup of a type in a specific industry. Again I'm repeating the explanation. कोई इन्वेस्टर होगा जो अपने स्टार्टअप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, उस टाइम वो पहला वही क्वेश्चन होगा उसका कि उसकी एग्जिट साइज की वैल्यू क्या होगी, तभी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तभी वो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा. तो यहाँ पे जो बिजनेस ने स्टार्टअप किया है वो वेरियस मेथड से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर को कि ये स्टार्टअप वैल्यू की ये वैल्यूएशन होगी. सो वी नीड टू लर्न द मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ अ न्यू कंपनी. सो बाय यूजिंग द वेरियस मेथड और framework, we are here to identify the valuation value. So using this method or framework is so important because startup company like पास्ट परफॉर्मेंस, रिलेबल परफॉर्मेंस नहीं होता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर परफॉर्मेंस, एंड ड्यू टू विच ही कैन नॉट एस्टिमेट द वैल्यू. सो वी नीड टू हैव अ वेरियस मेथड और फ्रेमवर्क जो है वो हमें स्टडी करना पड़ता है. तो वेरियस मेथड एंड फ्रेमवर्क से यू नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यूएशन वैल्यू मेथड so that you can have a proper prediction of your money valuation about your business. सेकेंड पैराग्राफ में आपने क्या समझा कि बाय यूजिंग दिस मेथड और अ फ्रेमवर्क यू आर हियर टू आइडेंटिफाई द व्हाट विल बी द वैल्यूएशन वैल्यू मेथड. सो दे आर डिफरेंट मेथड यू नीड टू डिसाइड फॉर योर स्टार्टअप वैल्यूएशन. व्हाई ऑल ऑफ देम डिफर इन समहाउ, दे आर ऑल गुड टू अस आल्सो. ठीक है, गुड टू यूज. हर एक मेथड हर एक चीज़ यहाँ पे डिफर रहेगी. मतलब there are various different method used in deciding on startup valuation and which always differ in somehow, they are all good to use. So let's see various method. That is your venture capital method, scorecard valuation method, risk factor summation method, cost to duplicate method, discount cash flow method, valuation by stage method, comparable value, the book value method. Let us understand each method in a simple description in simple way. First one, venture capital method. Venture capital method is one of the method for showing the pre-money valuation and the pre-revenue setup. Venture capital method से you can identify कि pre-money valuation क्या होगी और pre-revenue startup value क्या होगी. This concept was first described by Professor Bill Salmon at Harvard Business School in 1987. What is the following formula being used in the venture capital method is that it use return on investment. It used to identify the return on investment with the help of terminal value divided by the post money value. What will be the terminal value? जो exit value जो होती है, harvest value जो होती है, उसको डिवाइड किससे करोगे? पोस्ट मनी वैल्यू. प्री मनी वैल्यूएशन एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या डिफरेंस क्या है? प्री मनी वैल्यूएशन मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट करो उस टाइम की वैल्यू, एंड पोस्ट मनी वैल्यू जब आप एग्जिट करो उसकी वैल्यू. तो with the help of your pre and post money value, you will identify your return on investment. तो टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय पोस्ट मनी वैल्यूएशन. ठीक है, तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या होगी? टर्मिनल वैल्यू जो होता है, इट इज़ अ टर्मिनल वैल्यू और हार्वेस्ट वैल्यू ये होता है कि whenever you have a startup, you need to have anticipated a selling price in the future. So estimated by using a reasonable expectation for revenue in the year of sale and estimating the earning. So terminal value ये होती है कि whenever you are identified a startup anticipated selling price in the future, you need to have a reasonable expectation for revenue. For example, it is a simple example being given. The terminal value is your
40 lakh and your anticipated return is 20x and you need to have a dollar 1 lakh to get a positive cash flow, we can do the following. The post money value find करोगे with the help of the formula, that is terminal value divided by your टर्मिनल वैल्यू. पोस्ट मनी वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या करो, टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, एंटिसिपेट आरओआई. एंटिसिपेट आरओआई कितना होगा आपको दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 20x. तो आप डिवाइडेड करोगे उससे तो यू विल आइडेंटिफाई द पोस्ट मनी वैल्यूशन. पोस्ट मनी वैल्यूशन आपको आइडेंटिफाई हुआ तो यू कैन आइडेंटिफाई योर प्री मनी वैल्यूशन. तो पोस्ट मनी वैल्यूशन में से इन्वेस्टमेंट आपकी वैल्यू माइनस कर लोगे तो आपको प्री मनी वैल्यूशन मिल जाएगा. दैट इज योर वेंचर कैपिटल मेथड. नेक्स्ट वन इज योर स्कोर कार्ड method. Scorecard valuation method use the average pre-money valuation of other CD and startup business in the area and then judge the startup that needs a valuation against them using a scorecard in order to get an accurate valuation. यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे के जो स्टार्टअप बिजनेस हुए उसकी प्री मनी वैल्यूएशन को कंसिडर किया जाता है एंड देन दे जज कि अपनी खुद की कंपनी के स्टार्टअप की वैल्यूएशन अगेंस्ट देम यूजिंग अ स्कोर कार्ड क्या होगी इन ऑर्डर टू हैव एन एक्यूरेट वैल्यूएशन. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यही होगा, यू नीड टू फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एवरेज प्री मनी वैल्यूएशन ऑफ अ प्री रेवेन्यू कंपनी इन द रीजन और अ बिजनेस सेक्टर. आप पहले अपना प्री मनी वैल्यूएशन और प्री रेवेन्यू कंपनी फाइंड प्री रेवेन्यू वैल्यूएशन मतलब प्री मनी वैल्यूएशन फाइंड करोगे ऑफ योर प्री रेवेन्यू कंपनी ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर एंड इन दैट पर्टिकुलर रीजन. The next step is to find out the pre-money valuation of pre-revenue company using the scorecard method to compare. तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजमेंट टीम कितनी होगी, मतलब आपको स्कोर कार्ड बनाना डिसाइड करना होगा प्री मनी वैल्यूएशन के लिए प्री रेवेन्यू कंपनी यूजिंग द स्कोर कार्ड. स्कोर कार्ड क्या, मैनेजमेंट टीम का कितना परसेंटेज होगा, साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी का कितना होगा, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी कितना होगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट कितना होगा, मार्केटिंग सेल एंड चैनल पार्टनरशिप कितना होगा, नीड फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज कितना होगा. तो यू विल प्रिपेयर योर स्कोर कार्ड and in that way you will have your pre-money valuation. The final step is to assign a factor to each of above quality based on the target startup and then to multiply the sum of the factor by the average pre-money valuation of pre-revenue company. Last step यही है कि you need to have the last factor यही है कि you need to have a above quality based on target startup एंड उसको मल्टीप्लाई करना बाय द सम ऑफ द फैक्टर बाय द एवरेज प्री मनी वैल्यूएशन और प्री रेवेन्यू कंपनी. थर्ड वन इज योर रिस्क फैक्टर समेशन फैक्टर. रिस्क फैक्टर समेशन मेथड में आप अपना यू विल कंपेयर 12 एलिमेंट्स ऑफ द टारगेट स्टार्टअप एंड यू विल फाइंड द एक्सपेक्टेड इज बीइंग फंडेबल और पॉसिबल प्रॉफिटेबल स्टार्टअप यूजिंग द सेम एवरेज प्री मनी वैल्यूएशन ऑफ प्री रेवेन्यू स्टार्टअप इन द एरिया ऑफ द स्कोर कार्ड. स्कोर कार्ड 3, बट यहाँ पे कौन से रिस्क आपके बिजनेस में असाइन हो सकते हैं वो आप फाइंड करोगे. मतलब व्हाट आर द रिस्क विच कैन बी, यू विल फाइंड 12 एलिमेंट, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर रिस्क लग सकता है. तो वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद योर बिजनेस यू विल आइडेंटिफाई, दैट इज 12 एलिमेंट ऑफ रिस्क. और हर एक को ईच एलिमेंट इज बीइंग असेस्ड हैज फॉलो, दैट इज मीन पॉजिटिव कितना होगा, कितना न्यूट्रल होगा, नेगेटिव कितना होगा, वो असेस करोगे एंड थ्रू विच यू विल फाइंड योर प्री मनी वैल्यूएशन ऑफ अ प्री रेवेन्यू कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट इज योर कॉस्ट टू डुप्लीकेट मैटर. कॉस्ट टू डुप्लीकेट मैटर में यही होता है कि जैसे कि आप एसेट बेच रहे हो, ठीक है, यू आर सेलिंग योर एसेट और उसके बाद अपना नया स्टार्टअप करने वाले हो, तो विथ योर एसेट विल यू एबल टू डुप्लीकेट योर बिजनेस स्टार्टअप और नॉट, वो डिसाइड करना. दिस अप्रोच इन्वॉल्व लुकिंग एट द हार्ड एसेट ऑफ अ स्टार्टअप एंड वर्किंग आउट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू डुप्लीकेट द सेम स्टार्टअप बिजनेस समवेयर एल्स. मतलब एसेट को बेच के दूसरा आप बिजनेस रिप्लीकेट करने वाले हो तो उसमें आपको कितना कॉस्ट इनकर होगा. कॉस्ट ज़्यादा होगा तो यू विल नॉट हैव अ डुप्लीकेशन, कॉस्ट कम हुआ तो यू विल हैव अ डुप्लीकेशन. तो कॉस्ट डुप्लीकेटेड मतलब क्या हुआ कि बाय सेलिंग ऑफ द एसेट विल यू एबल टू रिप्लेस योर बिजनेस इनटू विल यू एबल टू रिप्लेस योर बिजनेस और नॉट. तो विथ योर एसेट सोल्ड विल यू एबल टू कवर दैट कॉस्ट एंड टू स्टार्ट योर बिजनेस स्टार्टअप. कॉस्ट ज़्यादा होगा तो नहीं करोगे, कॉस्ट कम होगा तो यू विल डू.
Definitely. For example, if you wanted to find a cost duplicate of a software business, you will look at the labor cost for the program and amount of programming time, ठीक है, that has been used to design the software. मतलब हर एक का कॉस्ट जो आपका इन्वॉल्व है, लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व है, अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग टाइम है, वो हर एक का कॉस्ट आप इन्वॉल्व करोगे. एंड बिग प्रॉब्लम विद दिस मैटर इज इंक्लूड द फ्यूचर. इट डजंट इंक्लूड, मतलब फ्यूचर पोटेंशियली क्या हो सकता है स्टार्टअप का, इंटेंजिबल एसेट का लाइक ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन और हॉटनेस ऑफ मार्केट, वो इंक्लूड नहीं किया है. तो विद दिस मैटर कैश टू डुप्लीकेट मैटर इज ऑफन यूज एज अ लो बॉल एस्टिमेट ऑफ द कंपनी वैल्यू. कॉस्ट डुप्लीकेट मैटर में क्या करना है कि एसेट को बेच के न्यू बिजनेस स्टार्टअप करोगे तो उसमें आपका कॉस्ट कितना लगेगा, ज़्यादा कि कम. दैट इज योर कॉस्ट डुप्लीकेट. नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट इन कैश फ्लो मैटर. इट इज यू नो वेरी वेल डिस्काउंट इन कैश फ्लो मैटर, जहाँ पे आप ये समझ दो, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड में आप ये समझ लो कि जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, तो आप अपनी फ्यूचर वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हो का तो प्रेजेंट वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो यू हैव अ डिस्काउंटेड, ठीक है. तो फ्यूचर में हम क्या करते हैं, मनी जो है हमारी डिस्काउंटेड होती है, ठीक है. जैसे कि आज मुझे 100 मिला, बट फ्यूचर में जो 100 मिलेगा उसकी वैल्यू और आज के 100 की वैल्यू, उसमें वाइज डिफरेंस है. तो डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड मतलब क्या कि द मनी विच आई रिसीव टूडे इज वर्थ मोर देन द मनी रिसीव in future. There is nothing but a time value concept. The time value of money का concept यही है कि the money which I receive today is more than the money received by tomorrow or yesterday or in future. तो यहाँ पे discounting cash flow method मतलब आपकी फ्यूचर में जो वैल्यू होती है वो डिस्काउंटेड होती है. दिस मैटर इन्वॉल्व प्रेडिक्टिंग हाउ मच कैश फ्लो द कंपनी विल प्रोड्यूस एंड देन कैलकुलेट हाउ दैट कैश फ्लो इज वर्थ अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. आपको पता है कि फ्यूचर में इतना कैश फ्लो मिलने वाला है, बट व्हाट विल बी अ एग्जिट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ठीक है. जैसे डिस्काउंट रेट हायर होगा तो यू कैन अप्लाई द स्टार्टअप टू सो द हायर रेट्स द कंपनी विल पे हैज इट स्टार्ट. आपका डिस्काउंट फैक्टर ज़्यादा होगा तो मनी जो कैश जो होगा वो रिसीव जो होगा वो कम होगा. तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड में आपकी जो वैल्यू फ्यूचर में जो कैश फ्लो मिलने वाले उसको आप डिस्काउंट करते हो. दैट इज अ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड. वैल्यूएशन बाय स्टेज इज अनदर मेथड. द वैल्यूएशन बाय स्टेज मेथड इज ऑफन यूज इन द by the angel investment and venture capital firm to come up with the quick range of startup valuation. यहाँ पे यही होगा कि हर एक स्टेज वाइज आप अपनी कंपनी का वैल्यूएशन करोगे. एट द डेवलपमेंट स्टेज आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी, एट स्टार्टअप स्टेज आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी, उसके बाद एट द टाइम ऑफ योर प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी आप अपग्रेड करो, एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप इनोवेशन वैल्यू क्या होगी. मतलब वैल्यूएशन बाय स्टेज मतलब हर एक स्टेज वाइज यू विल हैव अ वैल्यूएशन. नेक्स्ट वन इज कंपेरेबल मैटर. कंपेरेबल मैटर मतलब आप दूसरे के अदर सिमिलर स्टार्टअप की वैल्यूएशन को कंपेयर करके आप अपनी खुद की कंपनी के स्टार्टअप वैल्यू डिसाइड करोगे. तो कंपेरेबल मेथड में यही होता है कि विद कंपैरिजन ऑफ अदर कंपटीटिव कंपनी और बिजनेस यू विल ट्राई टू हैव अ कंपैरिजन एंड देन यू विल डिसाइड अबाउट द स्टार्टअप वैल्यूएशन. यू हैव गिवन द एग्जांपल जैसे कि स्टार्टअप ये है, इज बीन एक्वायर्ड $75 lakhs and as a website है 25 lakh 2,50,000 एक्टिव यूज़र. उसका एस्टिमेट वैल्यूएशन बिटवीन द प्राइस ऑफ स्टार्टअप एंड नंबर ऑफ द यूज़र इज 30 यूज़र. तो यहाँ पे बी क्या करेगा, बी का जो यूज़र होगा तो 1,25,000 होगा, उसका सी मल्टीपल क्या होगा 30 यूज़र एंड रीच अ वैल्यूएशन ऑफ 3,75,000. मतलब स्टार्टअप ए के थ्रू आपने कंपेयर किया और आपका बी का आपने डिसाइड किया. द बुक वैल्यू मेथड द इजिएस्ट मेथड बीइंग यूज ऑन द नेटवर्क ऑफ द कंपनी. मतलब जो टेंजिबल एसेट की बुक वैल्यू है उस पर आप अपना कंपनी का वैल्यूएशन करोगे. दिस डजंट टेक इनटू अकाउंट द ग्रोथ, ठीक है. बुक वैल्यू मेथड ग्रोथ रेवेन्यू कंसिडर नहीं करता, only what will is the book value of the asset will be considered. So this was your valuation method. The detailed explanation will be given in the live section in detail wise. So just go to the topic and then have a rough idea so we can have a clarification in our live section. Thank you students for listening.